Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। अभी आप एकदम कंफर्टेबल हैं? सर आपकी वॉइस एक सेकंड। हाँ, वो चेक कर लीजिए एग्जैक्टली। नेटवर्क वॉइस, अभी वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर। ठीक है, तो अभी आपसे एकदम हम लोग बातचीत करेंगे। 2-4 प्रश्नों के आंसर नहीं आ रहा है तो उससे घबराइएगा मत। मूल उद्देश्य हमारा यही है कि आपकी पर्सनैलिटी देखना, ठीक है, ना कि आपसे क्विज करना, क्योंकि आप ऑलरेडी मेंस दे के आ चुकी हैं, तो हमें आपको क्विज नहीं करना है, ठीक है। जी सर। तो मैं शैवी, आपके इंट्रोडक्शन से पहले आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप क्या भारतीय न्याय संहिता के बारे में कुछ जानती हैं? भारतीय न्याय संहिता, इट्स जी। लाइक if you can please repeat the question in English. Okay, yes, the currently amended IPC named as Bharatiya Nyaya Sanhita. Okay. Okay, sir. Indian Penal Code is basically the substantial law which describes about the criminal activities and punishments regarding that in the I want country. to know about Sevi. I want to know about the Bharatiya Nyaya Sanhita, the recent amendment Okay, the that recent have been signed by the President of India. Sir, the recent amendment has amended the IPC, CRPC, and the Indian Evidence Act, and had brought different substantive points in them, such as in the IPC section, various type of crime have been included, like terrorism and organized crimes, like that. Similarly, in the Indian Evidence Act, electronic medium has now been included as an evidence. And similarly, when it comes to CRPC, there have been numerous procedural things which have been included, like there have been power given to the police personnel, especially in context of handcuffing and all, because of which it has also been under certain criticism by different people of law knowledge. So what about the sedition charges? The So the sedition. charges have been removed, but on the other hand, there have been certain clauses which include about the security, unity, and integrity of India if it is under threat. That says, sections could be invoked. Okay. तो आप अपना ग्रेजुएशन, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, और अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दीजिए। So my name is Chevi Dubey. I did my schooling from my hometown in Sehora Tehsil in Jabalpur, after which I did my graduation and post-graduation from Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramoday Vishwavidyalaya, post which I worked as a financial analyst in a startup in Jabalpur for 1 year. But during COVID, I left my job, and from then I started preparing for civil services. And in my free time, I like to play badminton and travel to different places. तो ये जो आपने बोला कि आप स्टार्टअप में आपने काम किया, Yes, ठीक sir. है, तो क्या काम करते थे आप वहाँ पे? आपका वर्क एग्जैक्टली क्या था? Okay. Sir, as a financial analyst, my work was to design the financial management of the organization, such as to look to the trends, whatever the financial trend is present in the organization, to suggest them how they can perform well and how the organization can move towards the profit. So I maintain the analysis on the basis of data that I get, and then my job was to perform make a data sheet out of it and then communicate it to the organization level. तो जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने डेटा शीट देखी, आपने एनालिसिस किया पूरा डेटा शीट का, तो क्या इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, हाँ, उसको उन्होंने कुछ यूज किया होगा, यूटिलाइज किया होगा डेटा? Yes, sir. I feel that earlier there used to be. I feel that during the time when I joined the organization, I suggested them to look towards the not only look to the trends of our organization, look towards the trend of the other competitive organizations as well. That gives you a motive of comparison, and that also provides you with an opportunity so that you can compare, and that comparison could be used for better analysis in the organization. And since it was a nascent startup, so I think this helped them to excel in the organization. उनके कॉम्पिटिटर कौन-कौन थे? आपने उनके डेटा देखे या फिर आपने बस बोला कि देख लो, तुम No, लोग no, देख sir. लो? Sir, I looked towards the data because sir, my work is to look towards the data which was provided to me by see financial analyst works as a team. It is not a single person work. So there were many people in my team, such as the data analyst, the data organizers, the person who used to collect the data. So I used to get data of different companies, and on the basis of that
I used to make the analysis of the trends. अब मुझे एक चीज जानना है, जैसे एनालिस्ट और मैनेजर, ये दो कीवर्ड्स हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? Sir, analyst is someone who basically just analyzes the things and put down that things into a broader perspective, and then the work of the management is to take actions on those analysis and perform the work on the basis of that. ओके, मुझे एक बात और बताइए, ग्रामोदय का क्या मतलब है और मीनिंग ऑफ ग्रामोदय? Okay, so Gramodaya means the empowerment of village, the self-sufficiency in the village. It was the concept which was given by Mahatma Gandhi, and the pioneer who was in towards this establishment of Mahatma Gandhi Gramodaya Vishwavidyalaya was Nanaji Deshmukh. He was deeply inspired by Gandhian ideology, and in order to promote self-sufficiency in village, he really led that movement for the for the establishment of university. And अच्छा सैवी, ये क्यों कहा जाता है कि ग्राम उदय से भारत उदय, जबकि सरकार सबसे ज्यादा ऐसा देखा गया है, जो जैसे जो बजट भी आता है या फिर जो भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं, तो सबसे ज्यादा सरकार इन्वेस्टमेंट या फोकस करती है सिटीज पर। अगर आप देखेंगे, खासतौर पे अगर आप देखेंगे, बजट का एक बड़ा चंक फोकस होता है। जैसे यूपी के ही बजट की मैं बात करूं तो आप देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट भी आया, अगर यूपी में हम देखें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो कर रहा है वेस्ट यूपी में, नोएडा और उसके आसपास। ईस्ट यूपी में भी जहां पे अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आया है तो वो है बेसिकली अर्बन सेंटर्स पे। तो बात कर रही है भारत सरकार की ग्रामोदय से भारत उदय, और चल रहा है शहरों से भारत उदय। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या व्यू है इस संदर्भ? सर, आई फील कि ग्राम उदय का कॉन्सेप्ट इसलिए है बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी है। हम कृषि प्रधान देश कहलाते हैं और इंडिया में रूरल पॉपुलेशन ही ज्यादा है। तो अगर हम इस तरीके से पॉलिटिकल वाइज भी देखें तो हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ताकि नीचे से गवर्नेंस को आप ऊपर तक लेके आए। बिकॉज डेमोक्रेसी तभी स्ट्रेंथन होगी या फिर हमारा डेवलपमेंट तभी स्ट्रेंथन होगा जबकि वो बॉटम अप होगा गवर्नेंस रेदर देन टॉप डाउन। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर हम ग्राम उदय करेंगे तो रूरल लेवल पे सेल्फ सफिशिएंसी लेके आएंगे, तो उससे जो डेवलपमेंट होगा वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा जो कि भारत को उदय की तरफ लेके आएगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि आप कह रहे हैं कि हम सस्टेनेबल सिटीज वगैरह के लिए दे रहे हैं, तो सर जब ये सस्टेनेबल सिटीज वगैरह के लिए एम्फेसिस हैं, आई एग्री टू दैट। उसका रीजन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सरकार को देखना होता है, बट ऐसा नहीं है कि इसको देखते हुए रूरल को बिल्कुल निग्लेक्ट किया गया है। रमन सर, एक बार आप म्यूट कर दीजिए। जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन लाया हुआ है सरकार ने। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया कि आपको इसके बारे में जानकारी है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश या यूपी गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जो कि ग्राम उदय को बढ़ावा दे रही है, यूपी गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली? ओके सर, जो यूपी गवर्नमेंट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लेके आया है, उसका बेसिक मोटिव ही है कि जो लोकल लेवल पे रूरल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं अब इस पे आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। मुझे एक बात बताइए, आप एमपी से यूपी क्यों आना चाहती हैं? सर, मुझे एमपी और यूपी में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं लगता। दोनों में एक हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंकेजेस भी हैं। आप यूपी आ चुकी हैं इसके पहले? सर, मेरे अगर मतलब एंसेस्टर्स देखे जाएं तो वो मिर्जापुर से थे, बट मेरे दादाजी जो हैं उनकी जॉब एमपी में आई, तो उसके बाद मैं वहां पे ही बर्थ हुई है, बट मेरे एंसेस्टर्स मिर्जापुर पे रहे हुए हैं। तो क्यों आना चाहती हैं आप एमपी से यूपी में? मान लीजिए आपका एमपी पीसीएस में सिलेक्शन हो जाता है, या अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट होती है सपोज आप, और आईएएस बनती हैं आप, तो आप किसको कैडर प्रेफरेंस देंगी, यूपी को या एमपी को? सर, अगर मैं यूपीएससी में का मेरा सिलेक्शन होता है तो उसमें कैडर प्रेफरेंस में मेरा पहला प्रेफरेंस होम कैडर होगा, देन यूपी होगा। बट अगर अभी सर्विसेज के लिए बात में आए तो मेरा जो ड्रीम रहा है वो सिविल सर्विसेज रहा है। एंड सिविल सर्विसेज में आई फील कि आपके लिए एक नेशनल आइडेंटिटी रखना,
होना चाहिए रेदर देन किसी स्टेट की आइडेंटिटी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई फील कि मेरे लिए अगर यूपी भी सर्व करना है, एमपी सर्व करना है, वो इक्वली। अभी आपने बोला सर अगर यूपीएससी में होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा एमपी होगा। खैर कोई बात नहीं, मान लीजिए आपके एमपी में भी सिलेक्शन हो जाता है एमपी पीसीएस में, और यूपी में आपका इस बार सिलेक्शन हो गया, तो आप क्या छोड़ के चली जाएंगी कि एमपी हो गया चलो निकलते हैं वापस? नहीं सर, मैंने ऐसा सच अभी तो कुछ भी नहीं सोचा है कि कहीं एक जगह सिलेक्शन हो, बिकॉज अभी सोचिए एक बार कि अभी क्या करना चाहेंगी कि ठीक है अगर एमपी यूपी दोनों में होता है तो किसको आप कहाँ रखना चाहेंगी? सर मैं जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो रहा है मैं वहां को प्राथमिकता देके सर्व करना स्टार्ट करूंगी। जो पहले हो गया वो कर लेंगे आप? जी सर, बिकॉज मुझे लगता है कि आप इम्पैक्ट उतना ज्यादा तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप कहीं पे लॉन्ग टाइम पे सस्टेन करोगे। तो मेरा जो मोटिव है वो पब्लिक सर्विस का, वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है वो कहीं स्टेबिलिटी से आ पाएगा। ठीक है। अच्छा, आप बैडमिंटन, आपने बताया कि आप बैडमिंटन खेलती हैं, कौन से ब्रांड का रैकेट यूज करती है आप बैडमिंटन का? योनेक्स का यूज करती है। कहाँ की कंपनी है योनेक्स? सर जापानीज कंपनी है। जापानीज है कि साउथ कोरियन है? श्योर है आप जापानीज है? Sir, I'm not sure, but I feel I'm taking a guess. I'm sorry if I'm wrong, but I Okay. think it's a Japanese company. हाँ कोई बात नहीं। तो मुझे आप एक बार बताएंगे कि बैडमिंटन के कुछ जो भारत के जो सबसे फेमस खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, पुरुष महिला, मतलब आई डोंट वांट टू नो अबाउट द फीमेल वन Okay. बट द मेल वन, तो कौन से हैं? सर एक हो गए फुलेला गोपीचंद। ये तो वो बहुत पुराने, अब तो कोचिंग कर रहे हैं ये। जी नए बताइए रिसेंट के कौन? सर लक्ष्य सेन। हाँ, और? जो सेन थे उनका है, एंड देन चिराग शेट्टी। हम्म ही वाज अ बैडमिंटन प्लेयर। चिराग शेट्टी अभी नहीं खेल रही है करंट सर में? अभी खेल रहे हैं, 2021 में अवार्ड विनिंग भी इनकी परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, किसी पैरालंपिक विनर को जानती है क्या आप जो बैडमिंटन बहुत बढ़िया खेलते हैं? टोक्यो ओलंपिक्स में प्रमोद भगत हैं जिनको पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके ही वॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। और कोई सिल्वर भी जीता है, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा नाम है, यूपी गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल पे है। सर मैंने पढ़ा है, बट आई एम सॉरी आई एम सुहास नॉट सेलवाई। कॉल इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सुहास सेलवाई, ठीक है, इनके बारे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, जी क्योंकि आप यूपी में ही आना चाह रही हैं। ठीक है, जी रमन सर आप कंटिन्यू कीजिए, मैं वापिस आता हूँ एक बार। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपका म्यूट है माइक, आई गेस। सेवी जी, आपने बताया कि आपको घूमना पसंद है। यस सर। लास्ट टाइम कहाँ पर घूमने गई थी? Sir, the last trip of mine was a trip to Varanasi after clearing my prelims of UPPCS. तो वो तो उसमें तो अच्छा खासा समय हो गया। कब गई थी लास्ट टाइम? Sir, UPPCS result के बाद ही, because this preparation after that, I had my mains exam which required me a lot of time to devote to my तो study. आप ये बताइए कि आप सोलो घूमती हैं कि दोस्तों के साथ, ग्रुप में, फैमिली के साथ कैसे घूमना पसंद करती हैं? Sir, it depends occasionally. Sometimes I prefer to go solo when I feel that I want to have some deep कहीं thinking. सोलो ट्रिप किया आपने आज तक? Yes sir, I had a solo trip to Rishikesh. ऋषिकेश। जैसे मानिए आप मुझे बताइए कि अगर मैं ऋषिकेश जाता हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ पर घूमना चाहिए? अब मुझे 3 जगह बताइए। सर ऋषिकेश में सबसे पहले तो जो आरती घाट है वहाँ का, वो प्लेस मुझे काफी अच्छी लगी कि पीसफुल है वो प्लेस। देन दी राम झूला एंड लक्ष्मण झूला वाला एरिया आई विजिटेड देयर। और दूसरा मुझे कैंपिंग का एक एक्सपीरियंस लेना था, तो मैंने वहाँ कैंपिंग वाले एरिया पे बुकिंग ली थी, एंड देन आई एंजॉयड ओवर देयर। अब मुझे ये बताइए कि एक वुमेन के तौर पर, एक महिला के तौर पर सोलो ट्रिप करना कितना सेफ है हमारे इंडिया में, और आपने कैसे, मतलब कि आपने क्या क्या ध्यान रखा, क्या क्या सिक्योरिटी रीजंस आपने कैसे देखा? सर मुझे ऐसा लगता है ना कि वुमेन के तौर में सोलो के, अगर आप ग्रुप में भी जा रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सेफ्टी मतलब हमेशा आपको मिलेगी, लेकिन आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। इस चीज पे मैं बिलीव करती हूँ, एंड यही मेरा भी था। तो जब मैंने अपना सोलो ट्रिप प्लान किया तो मेरा मोटिव था कि मैं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऐसी ट्रस्टवर्दी सर्च करूं जिनका मतलब रेटिंग वगैरह अच्छी हो। तो मैंने ऐसे मेक माई ट्रिप को देखा था, एंड वो ग्रुप में लेके जाते हैं और उसका रिव्यूज वगैरह अच्छा था, तो मैंने इसलिए उनके साथ बुकिंग ली थी। प्लस उसके बाद भी मैंने अपने पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को ये चीज बता के रखी हुई थी दैट आई एम ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस, और मैं उनसे समय समय पे बातचीत भी कर रही थी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं की भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आपको वहाँ के जो इमरजेंसी डायलिंग नंबर्स हैं उन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए, ताकि जब आपको अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए तो आप इमीडिएट कांटेक्ट करके एक रिलीफ ऑप्शन के लिए देख सकें।
ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, आप जब अधिकारी बनते हो अभी फ्यूचर में, तो आप सबसे पहले किन 3 समस्याओं पर ध्यान दोगे? यूपी की 3 समस्याएँ कौन होंगी ऐसा, जिन पर आप ध्यान देना चाहोगे? तो यूपी की 3 प्रॉब्लम्स में मुझे एक सबसे बड़ी लगती है कि यूपी आप देखिए कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में रैंक 1 है, बट उसके बाद भी यूपी में मैल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा है। चिल्ड्रन स्टंटिंग वगैरह आप देख लें तो एक वो है इश्यू जिसमें मुझे लगता है कि मैं ध्यान देना चाहूँगी। दूसरा रीज़न है कि यूपी में मुझे लगता है कि रीजनल डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी है, अभी भी है, वेस्ट और ईस्ट के बीच बेसिस में। तो वो एक सेकंड पैरामीटर है जिसमें मैं काम करना चाहूँगी। एंड thirdly will be this communal clashes and communal violence which I feel कि यूपी में कभी ना कभी persist करता रहता है। तो these three will be the priority areas. जैसे मानिए एक केस स्टडी लेते हैं हम लोग, मानिए आप एसडीएम बन करके आए हो किसी जिला में, वाराणसी जिले में आप हो, ठीक है? और अभी राम मंदिर का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से न्यूज़ में बना हुआ है लगातार। 22 जनवरी की जो डेट रखी गई, उसके ड्यूरेशन में कोई कम्युनल वायलेंस होता है आपके शहर में, वाराणसी में, आप कैसे कंट्रोल करोगे? सर कम्युनल वायलेंस के लिए एक मतलब मल्टी फेसेटेड अप्रोच रहेगा। सबसे पहले तो क्योंकि ये एक कम्युनल इशू ही रहा है जब से उसका मतलब राम मंदिर बनना शुरुआत हुआ है, तो मैं ये इंश्योर करूंगी कि मेरी एक एनफोर्समेंट का एक मतलब एक टीम होनी चाहिए, एनफोर्समेंट टीम होनी चाहिए जो वहां पे तैनात रहे, ताकि अगर किसी भी तरीके का ऐसा कुछ वायलेंस होता है तो वो नहीं, हो चुका है, कम्युनल वायलेंस हो चुका है, मतलब हिंसा फैल चुकी है, आप क्या करोगे? सर अगर इसमें ऐसे हिंसा फैल चुकी है तो उसमें मैं सबसे पहले तो वहां पे एक पुलिस फोर्स को ही टास्क फोर्स को वहां पे तैनात करूंगी ताकि उसको कर्व करने में वो हेल्प करे। उसके बाद मैं वहां पे इमरजेंसी की जो भी फैसिलिटीज होती हैं सच एज एम्बुलेंस हो गई या फायर ब्रिगेड हो गई, इनसे कोऑर्डिनेट करूंगी ताकि कुछ भी जो हिंसा हुई भी है वो बहुत बड़ा रूप ना ले पाए। उसके अलावा मैं जो दोनों ग्रुप के या जो भी लोग होंगे उनके अगर कोई लीडर वहां पे मुझे ऐसे मौजूद पाए जाएंगे तो मैं उनको परसुएड करने की कोशिश करूंगी कि हमें मतलब यूपी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, तो वो सांप्रदायिकता जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए रेदर देन कोई कम्युनल क्लैश के। और उसके बाद भी अगर मुझे कुछ ऐसे लोग समझ में आते हैं जिनने हिंसा फैलाई है तो उनके लिए लीगल एक्शन लेने पे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ठीक है, आप एनालिस्ट के पद पर कार्यरत थी पहले, Yes. आप किसी स्टार्टअप में काम कर रही थी। Yes, sir. अभी आप एनालिस्ट के तौर पे जब काम कर रहे हो तो आपको एक एसी रूम में बैठ के काम करना रहता है, आराम से बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो। अभी जब आपकी प्रशासन में यहाँ पर जिम्मेदारी आएगी तो आपको किसी ग्रामीण क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगेगी, कैसे मैनेज कर पाओगे इन सब चीजों को? एक महिला, आपने खुद बताया कि महिला चाहे अकेली हो चाहे ग्रुप में हो, बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज तो वहां पर रहते ही, आप कैसे मैनेज कर पाओगे इस चीज को? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक है मैंने ऑफिस जॉब किया है, बट मेरा अगर आप देखेंगे तो मैं सिहोरा एक टाउन है, तो मैं रूरल बैकग्राउंड से ही बिलोंग करके आई हूँ, तो मैंने वो रूरल लेवल पे क्या सिचुएशंस होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। अगर मैंने एक ऑफिस में काम किया है तो मैंने घर जाके मैं उसी माहौल पे रह के पली बड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस आपको किसी भी जॉब में कहीं भी आएँगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे मैनेज करेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं किसी जगह पे जाऊँगी, छोटी जगह में, तो मेबी मुझे वहाँ के लोकल डायलेक्ट्स को समझना, लोकल प्रॉब्लम्स को समझना, वो सब मेरे लिए एक चैलेंज के रूप में आ सकता है। बट सर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझूँ। जो मेरे साथ जो मेरे प्रशासन के लोग होंगे, उनकी हेल्प लेके वहाँ के समस्याओं का जायज़ा जल्द से जल्द लूँ और उसपे कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाके दूँ। चलिए ठीक है, मेरा आपसे एक लास्ट प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि आपने पीरियड पेड लीव का नाम सुना है? यस सर। ये क्या होता है? सर ये बेसिकली मेंस्ट्रुअल पेड लीव जो है वो वुमेन के कंटेक्स्ट में ये बोला जाता है कि वुमेन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल गो थ्रू एक्सट्रीम पेन बिकॉज ऑफ व्हिच दे शुड बी गिवन एटलीस्ट 2 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव। मुझे ऐसा हाँ, क्या भारत में अलाउ है? मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। सर अब ये बोला जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल लीव देना चाहिए। कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ज़ोमैटो ने सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की थी जब उनने मेंस्ट्रुअल लीव का कॉन्सेप्ट दिया था, और अब इस बात को लेकर थोड़ा तूल पकड़ रहा है कि भारत में मेंस्ट्रुअल लीव लाना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट सर मुझे याद आ रही है कि वो मेंस्ट्रुअल लीव काफ़ी पहले से दे। तो क्या आप इसके पक्ष में हो कि आप इसके विपक्ष में हो? और आप ये बिहार गवर्नमेंट का श्योर हो कि वहाँ पर लागू कर दिया गया है? यस सर, मैं बिहार गवर्नमेंट में पहले से मेंस्ट्रुअल लीव है।
और क्या कहते हैं कि आपका क्या मत है, मतलब दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, अभी मैटरनिटी लीव की जब बात हो रहा था एक डेढ़ दो साल पहले, तो उस समय भी ये चर्चा का विषय बना था कि इसके कारण से महिलाओं को वर्कफोर्स से बाहर निकाला जाएगा। कोई भी कंपनी अपने यहाँ पर ऐसे कर्मचारी को रखना नहीं पसंद करेगी जिसको बिना काम के बदले सैलरी देना पड़े। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर जोड़ते हैं तो इससे महिलाएं एक तो पहले से ही नहीं है वर्कफोर्स में, उनको हम और बाहर निकाल रहे हैं, क्या ये समस्या यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है? सर ये समस्या है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो ये मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो एक वुमेन की हेल्थ सेफ्टी के हिसाब से बहुत जरूरी है, और ये जरूरी नहीं है कि अगर वो 2 दिन काम पे नहीं आएंगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको ये पीरियड पे लीव मिलती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी इनफैक्ट बढ़ेगी। बट इस चीज को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कम्युनिकेट करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, जिसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिटीज वगैरह बननी चाहिए जिनको इस चीज को एंश्योर कराना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को कि पीरियड पे लीव देने से वुमेन की प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है सर कि ये एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है जो बहुत साल से चला आ रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस इस लेवल पे वुमेन एम्प्लॉयज को सपोर्ट करेंगी तो वो कहीं ना कहीं जाके ये एक स्टेप होगा कि इतने साल बाद इस डिस्क्रिमिनेशन पे थोड़ा सा देखिए, दरअसल अगर आपने वो पार्लियामेंट में एक बहस सुनी होगी, पार्लियामेंट में जो बहस हुई थी उसमें बहस में बहुत सारी बातें बताया गया, उसमें ये भी कहा गया कि ये किसी महिला का बहुत प्राइवेट इशू है, ठीक है, हम इसको पब्लिक क्यों करें, हम क्यों बताएं कि कब किसको पीरियड लीव लेना है नहीं लेना है। जैसे मानिए, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल केस हिस्ट्री दे रहा हूँ। मानिए कोई एक सिंगल लेडी है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है और वो पीरियड लीव नहीं लेती है, मानिए किसी महीने या फिर लगातार 2-3 महीने नहीं लेती है, तो क्या उसके बाकी कलीग की तरफ से उस पर ऐसा आरोप नहीं लगाया जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? आपको नहीं लगता कोई प्राइवेट इशू, किसी की बात पब्लिकली हम लेकर के आ रहे हैं इस संदर्भ में? सर ये एक पर्सनल इशू है, बट देन टू इट्स अ जेन्युइन इशू एज पर मी, कि ऐसा नहीं है जिस पे बात नहीं करी जा सकती है। बिकॉज कुछ टाइम पहले तक देखा जाए तो सैनिटरी नैपकिन्स को भी एज अ स्टिग्मा तरीके से लिया जाता था कि लोग अगर वुमेन उसको ले रही हैं तो दे यूज टू इंश्योर कि हम किसी वुमेन शॉप से लें या फिर उसको ब्लैक पॉली बैग के अंदर लें। तो सर ये इस तरीके के स्टिग्मास जो है वो बहुत हिस्टोरिकल अटैच रहे हैं, एंड आई फील कि इनको धीरे धीरे करके निकालना जरूरी है। ये मे बी ठीक है निशा, सेवी अभी यूपी में एनसीआरबी की रिपोर्ट है और वुमेन्स के क्राइम के देखेंगे अगर तो फर्स्ट या सेकेंड रैंक पे यूपी। यस सर। आपको नहीं लगता कि मतलब इसको, पहली बात तो ये कि इसे कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी पहले या दूसरे स्थान पे मौजूद है। यस सर, वुमेन की अभी भी अगर एनसीआरबी रैंकिंग देखा जाए तो यूपी उस पे फर्स्ट पे प्लेस है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको कम करना है तो उसके लिए बहुत सारे लेवल पे अप्रोचेस होने चाहिए। सबसे पहले तो ये जो लोकल एरियाज हैं लाइक द पब्लिक स्ट्रीट्स वगैरह, इसमें सीसीटीवी वगैरह एनफोर्स करना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है उस पे इंश्योर करना चाहिए कि जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है या ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी है वो बनाई जाए। बिकॉज जैसे अभी एक रेसलिंग इशू देखा गया था, उसमें भी मैरी कॉम मैम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये था कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी नहीं थी उतने बड़े फेडरेशन के अंदर पे भी। तो मुझे लगता है कि ये सब के कारण एक है कि वुमेन क्राइम जो है वो अभी भी बढ़ा है। नो डाउट यूपी गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि उनने वुमेन का इमरजेंसी डायलिंग नंबर वगैरह लाया है, वुमेन बटालियंस वगैरह हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टेप्स आने वाले समय पे उस क्राइम को कम करने में बहुत हद तक सार्थक साबित होंगे। अच्छा, ये इमरजेंसी डायलिंग नंबर है कितना? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम सॉरी। अभी आपने रेसलिंग की बात की, अच्छा रेसलिंग का जो ये विवाद था, अब मुझे जैसे ऐसे लगता जा रहा है कि ये सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो चुका है, क्योंकि एक बार अवार्ड्स वापस हुए हैं तो फिर WFI को निलंबित कर दिया गया, पर अब ये बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब सबने क्या किया, धीरे धीरे एक शर्त बना के फिर एक अगला अवार्ड वापस हो रहा है। आपको नहीं लग रहा कि अब ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो गया है? सर ये इशू पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की तरफ ले रहा है, बट इसका जो मेन इशू है ना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, वो अभी तक अनएड्रेस्ड है।
तो मुझे भी ये लगता है कि इस इशू को पॉलिटिकल एंगल से ना देके जो इसका रूट कॉज है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे कि जो वुमेन रेसलर्स ने एलिगेशन किया था रेसलिंग कमेटी के चेयरमैन के ऊपर कि उनको पॉस्को के अंदर बुक करना चाहिए, और इवन कमेटी रिपोर्ट से समझ में आया था कि कंप्लेंट कमिटीज नहीं है, रिप्रेसल नहीं है, उस पॉइंट ऑफ चीज को इग्नोर करके तो अवार्ड को लौटाना या फिर इन सब चीजों से आप एक ये चीज तो दिखा सकते हैं, आप अपना लेवल ऑफ प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं, बट ये एक चीज का इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की चीज अगर इसका सॉल्यूशन नहीं लाया जाता है वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में, तो जो बाकी वुमेन है वो कभी उनके लिए वो एक डिमोटिवेशन का काम करेगा कि वो स्पोर्ट्स में अपना करियर देखें। यूपी का टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2024 तक। अभी तो मतलब वो ऐसा नहीं लग रहा कि यूपी पा सकती है। कुछ ऐसे 1-2 ऑप्शंस जो आपको लगे कि इन एरियाज पे यूपी काम कर ले, तो अगले 1 साल में 1 ट्रिलियन तक इर्द-गिर्द तो पहुंचा जा सकता है या 1 ट्रिलियन पा ही लिया जा सकता है। सर मुझे ऐसा लगता है कि यूपी गवर्नमेंट के ऑलरेडी जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, की इनिशिएटिव्स, जैसे कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ना, ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, मेट्रो कनेक्टिविटी, जो वो ये सब लेके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लेवल पे बहुत अच्छे लेवल से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ यूपी को लेके जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो उनने ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस तरीके के इनिशिएटिव को लेके आए हैं, उससे जो अभी तक रूरल इकोनॉमी है, जो उतने अच्छे लेवल पे डेवलप नहीं कर पा रही थी, उसको एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है कि वो लोकल से ग्लोबल की तरफ मूव करे। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं यूपी गवर्नमेंट के, वो मुझे लगता है कि वो उसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ अच्छे स्टेप हैं, बट ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि ये इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत एफिशिएंटली हो। इको टूरिज्म का इसमें कुछ रोल है क्या? सर ऑब्वियसली इको टूरिज्म ऐसे देखा जाए तो इकोनॉमी के लिए काफी, मतलब अगर आप सर्विस सेक्टर में देखें तो वो टूरिज्म जो है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है। एंड यूपी में अगर आप ये देखें तराई वाले बेल्ट में तो काफी सारे पार्क्स हैं और वेटलैंड्स। कितना कंट्रीब्यूशन है यूपी के जीडीपी में टूरिज्म का? सर आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ द फिगर। तो ये हो गया, वेटलैंड्स वगैरह हैं, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड का कॉन्सेप्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है लोकल एरिया में जब आप इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेके आएंगे तो वो इको टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। एंड इको टूरिज्म के साथ एक चीज और बेनिफिट ये रहेगी कि आपकी इकोनॉमी प्रमोट होने के साथ साथ वो सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ आप बढ़ेंगे। अच्छा, मुझे राम मंदिर उद्घाटन के 2 बेनिफिट्स बता दीजिए। सर राम मंदिर बेनिफिट उद्घाटन के 2 बेनिफिट, एक तो रहेगा कि उससे कल्चरल सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है एक कम्युनिटी का, और हिंदुइज्म का कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो उससे लोगों को एक वो कल्चरल इंटीग्रेशन के रूप में होगा। दूसरा, एक मंदिर की ओपनिंग होगी लेकिन वहां पे बहुत सारा इकोनॉमी बूस्ट होगी, जैसे टूरिज्म इकोनॉमी होगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी होगी। तो ये जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी को भी यूपी की बूस्ट करेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। मैं 1-2 प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ। आप एसडीएम के पोस्ट पे सेलेक्ट हो गई हैं और आपके एक सीनियर ऑफिसर ने आपसे बातचीत की कि आप भी बहुत बढ़िया पोस्ट पे हैं और मैं भी आईएएस हूँ, वो आईएएस ऑफिसर है, तो आपको प्रपोज करते शादी के लिए, आप मान भी गई हैं। ठीक है, आपको एकदम एक्सेप्ट होता है। अब बातचीत आगे बढ़ती है, घर पे बातचीत जाती है, तो सारी चीजें एकदम मैच कर रही है, बिल्कुल घर वाले भी एकदम खुश है कि भाई बहू एसडीएम आने वाली है ना। और बस एक बात है कि उनको पैसे चाहिए, दहेज अच्छा खासा चाहिए। बनती बहुत है, आपकी जो अधिकारी है उनसे बहुत अच्छी बन रही है। और एक अच्छी बात आपके साइड से, पॉजिटिव बात यह है कि आपके पास भी खूब पैसे है, मतलब घर वालों के पास खूब पैसे, मतलब कमी नहीं है। वो एक गाड़ी मांग रहे तो आपके घर वाले 2-2 गाड़ी देने के लिए तैयार है कि ठीक है तुम बीएमडब्ल्यू मांगो, हम तुम्हें पोर्शे लाके देंगे। तो घर वाले भी एकदम रेडी है। आपका क्या डिसीजन होगा, क्या करेंगे आप? सर मैं इस केस में इनकार कर दूंगी, बिकॉज मेरे हिसाब से डाउरी देना किसी भी कंडीशन में, चाहे आपकी कितनी भी फेवरेबल कंडीशन हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड गांधी जी का एक कोट है, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। अगर मैं सिविल सर्विसेज में जा रही हूँ और अगर मैं वहां पे इस समाज की इस तरीके के उत्पीड़न से लड़ना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अपने अंदर वो चेंजेस
लाने की ज़रूरत है। तो कितना भी आपकी किसी से बनती हो, बट अगर डाउरी जैसी चीज़ एक क्राइम है, एक सोशल तो सीधे मना कर देंगी आप कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी, ठीक है। यस सर, मुझे उनसे कंडीशन रहेगी कि आप मेरे एंड से डाउरी मेरे पेरेंट्स नहीं देंगे, या डाउरी के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। और दूसरी बात, अगर वो नहीं मानते तो शादी कैंसल तो ठीक है, पर मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट भी करूँगी, बिकॉज़ नहीं, नहीं, वो आप रिपोर्ट करेंगी, वो पेरेंट्स भी मान रहे हैं इस बात को कि आप रिपोर्ट कर सकती हैं, उनको भी है। बस वो कह रहे हैं कि हम तो दहेज दे ही नहीं रहे हैं। आपके पेरेंट्स कह रहे हैं बेटा दहेज कहाँ दे रहे हैं? गिफ्ट दे रहे हैं स्वेच्छा से। वो भी यही कह रहे हैं कि हम तो भाई तुमने गिफ्ट दिया हम ले रहे हैं। दहेज-वहेज का तो दहेज जैसी भाई जो आपके आईएएस ऑफिसर है, जो आपके सीनियर हैं, उन्होंने एंटी डाउरी वो पूरा साइन किया है बढ़िया से। लंबा-चौड़ा साइन करके आए हैं वो। उनको पता है कि केस बन सकता है और बहुत बुरे फँस सकते हैं, नौकरी जा सकती है, उनको ये बात पता है। तो उन्होंने बोला मुझे तो पता ही नहीं, इस बात से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। और आपके मम्मी-पापा खुद ही आपको कह रहे हैं कि भैया दहेज-वहेज डाउरी का नाम ही नहीं है, कहाँ डाउरी है? मेरी बेटी है, स्त्री धन के रूप में जा रही है कहीं पे, मैं चाह रहा हूँ भैया वो खुश रहे जीवन भर। इसकी बात मुझे बताइए। मैं तो कह ही रहा हूँ सक्षम है आप पूरी तरीके से। सर, मैं इस केस में अपने फैमिली मेंबर्स को पर्सुएड करूँगी, उनको इस चीज़ को हुँ। समझाऊँगी कि ये एक तरीके का अपराध है। और नहीं मान रहे हैं, मम्मी-पापा कह रहे हैं अपराध-वपराध कहाँ है, तुम बड़ी आई 2 दिन की ज्ञानी, एसडीएम बन गई तो क्या समझ रही हो खुद को? उनका यही कहना है कि यार देखो, तुम अपनी तरफ से सब सही हो, हमें दहेज दहेज नहीं, दहेज का नाम भी नहीं देना, हमें गिफ्ट देना है। गिफ्ट दे रहे हाँ, गिफ्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेने वाला भी तैयार है गिफ्ट लेने के लिए, वो भी यही कह रहा है कि बेटा दहेज तो लेंगे ही नहीं। इतनी सुंदर और गुणी बहू आ रही है घर में, गिफ्ट-विफ्ट नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। सर, मैं तब भी मना कर दूँगी, मैं इस तरीके की शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। जो एक क्राइम है, वो क्राइम है, वो किसी भी लेवल में आप स्त्री धन के रूप में, ये मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री रूप धन के रूप में एक तरीके का सोशल एक्सप्लॉइटेशन ही है। और यही कहीं न कहीं जाके फिर वुमेन के आगे चल के वुमेन रिलेटेड क्राइम्स वगैरह के लिए एक इनिशिएशन का काम करता है। बिकॉज़ वन्स अ डाउरी सीकर विल ऑलवेज़ रिमेन अ सीकर इन एनी फॉर्म, तो मैं उस चीज़ से इनकार ही करूँगी आखिरी तक। ठीक है, लगता है गौरव सर का कुछ इंटरनेट खत्म हो गया। ओके। हाँ, वो कनेक्शन कट गया था। इनका भी कट गया क्या? नहीं सर, आई एम देयर। हाँ, ठीक है। तो आप अब क्या करेंगी भई? उस सिचुएशन में आप क्या करेंगी? सर, मैं इनकार कर दूँगी, मैं वहाँ शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। मुझे बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 2 वैल्यूज़ जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जीवन के, 2 वैल्यूज़। Sir, one will be integrity हुँ, हुँ। and second will be honesty. ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, दोनों की हम बातें करते हैं, तो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है? क्या एक व्यक्ति बिना इंटीग्रिटी के ऑनेस्ट हो सकता है? और क्या एक व्यक्ति बिना ऑनेस्टी के इंटीग्रिटी रख सकता है? बताइए मुझे। सर, इंटीग्रिटी एक्चुअली ऑल एनकम्पासिंग वैल्यू है। हुँ, अगर हुँ। आपके अंदर इंटीग्रिटी है तो आप ऑनेस्ट होंगे, बट आपके अंदर तो ऑनेस्टी है आपने तो बोला आप सर एक इंटीग्रिटी, दूसरा ऑनेस्टी। आपने जो वैल्यूज़ 2 याद आए सिविल सर्विसेज में मेंस वाला वही तुरंत ठीक है, तो माइट फिर मेरा हाँ। दूसरा कंपैशन होना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं है, इसमें कोई बिल्कुल परेशानी बात नहीं। ठीक है, चलिए इसको हम समाप्त करते हैं। आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, मतलब लिटरली आपको जो नॉलेज है और बातचीत करने का तरीका है, बहुत ही शालीन है और एक एसडीएम में ऐसा ही दिखना चाहिए, बहुत ही कूल है। बस एक प्रॉब्लम है पूरे इंटरव्यू में, मुझे एक प्रॉब्लम लगी, मैं बोर हो जा रहा था रहते-रहते, मतलब रहते-रहते मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ। लंबे मोनोलॉग हो जा रहे थे, जिन बातों को आप कहने से बच सकती थी, आप वो भी उसको जिस तरह की हम इंटरव्यू दे रहे हैं जैसे सब्जी, जैसे यही शैवी सिलेक्शन के बाद इन बातों को बैठ के आराम से बताएँ, हमने ऐसा किया, यूपी गवर्नमेंट की ये स्कीम को पहुँचा देंगे। जैसा लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और आप बढ़िया से इंटरव्यू दे रही हैं। इसमें आपको थोड़ा-सा कुछ बातों पे बहुत ही चयनात्मक होना पड़ेगा, मतलब बहुत ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे डाउरी वाले में भी आपने लंबा-चौड़ा वो पूरा मोनोलॉग कर दिया उसमें भी, बी द चेंज यू वांट, मतलब आप एक डायलॉग दे भी सकती हैं, उसको टू द पॉइंट कि नहीं सर मेरा व्यू यही है। कई बार ना एकदम स्ट्रिक्ट एक एक पॉइंट पे बहुत बहुत सारी चीज़ों में जैसे निशांत सर ने बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे, ठीक है, निशांत सर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे क्योंकि क्या होता है ना, देखिएगा समझिएगा, आप लंबे मोनोलॉग देंगी, इंटरव्यूअर थोड़ा बोर होगा, पहली बात। दूसरा क्या होगा ना, बहुत सारे डायमेंशन जो वो पूछने चाहता है, वो पूछना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है, आपकी हो सकता है हॉबीज़ के बारे में थोड़ा जानना चाहता हो सकता है किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहता हो, तो वो चीज़ टच नहीं कर पाता है, उसको वो मतलब वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं।
Yes. एज अ पर्सन आपको पता नहीं चलेगा, आपको लग रहा है कि आप बहुत शानदार आंसर, और वाकई में आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे, ये तो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। मतलब अगर मैं अभी की बात करूं तो आपके 70 प्लस स्कोर रहेंगे, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आप सही करती हैं तो आपके डायमेंशंस बढ़ेंगे। ठीक है, डायमेंशंस बढ़ेंगे। जैसे इसमें बहुत छोटी छोटी सुधार करनी है, ये भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ ऐसा एकदम बी द चेंज ही कर देना है, ऐसा नहीं करना है। एक सिंपल सा सुधार करना है कि आप प्रश्न रिपीट मत कीजिए। Okay, sir. जैसे जैसे मान लीजिए निशांत सर ने कोई क्वेश्चन पूछा, आप उसको रिपीट करने लगे। जैसे यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्या फायदे होंगे, तो आप लगे उसको एक्सप्लेन करने की ऐसा ऐसा है वो, है ना। रमन सर ने भी क्वेश्चन पूछा तो कम्युनल वायलेंस वाला, उसमें भी आप लगी वो क्वेश्चन रिपीट करने की ऐसा ऐसा होगा तो मैं ये नहीं। सीधी बात है मेरी सर, इस संदर्भ में या इस दौरान मेरी स्ट्रेटजी ये 3 स्टेप्स वाली होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थोड़ा सा आर्टिकुलेट टू द पॉइंट करेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी सर। ये Thank- एक बात है। दूसरी बात ये है, कई बार जैसे देखिए जनरली मैंने इंग्लिश से हिंदी में इस वजह से भी स्विच किया, वहां भी हिंदी में ही मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू चलेगा। पहले तो इसे घबराना नहीं है, ठीक है। इससे घबराने से आपका वहां पे निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। केवल आप बहुत सही बोल रही है, आप बड़ी सक्षम है, और जिस लैंग्वेज में आप बात कर रही है ना, उतनी हिंदी मोर देन सफिशिएंट है। आपको सर एकदम शुद्ध बायलिंगुअल जा सकते हैं अगर चाहें। यही करना ही है। मैं लास्ट हिंदी मीडियम से था, मैं बाइलिंगुअल मेरा इंटरव्यू दिया, लास्ट ईयर भी इंटरव्यू था, मैंने बायलिंगुअल ही दिया था। वहां मेरा पे और आपका बाइलिंगुअल। सर एक ही दिन पे था इंटरव्यू। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, हम लोग का साथ में ही था। अरे यस, क्या बात। आपका मॉर्निंग शिफ्ट था, मेरा इवनिंग शिफ्ट तो था। आपका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ उस साल, ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, इस बार हो जाए, बजरंगबली करें, कृपा करें आप पे। बहुत अच्छी बात। तो आप एक बात समझ रही केवल, बस मुझे अच्छा बाइलिंगुअल ही चला था ना वहां पे। यस सर, त्रिपाठी सर का बोर्ड था, तो हाँ उसमें बायलिंगुअल दिया तो वो कंफर्टेबल थे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आप बाइलिंगुअल ही दीजिए इंटरव्यू, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, सारे बोर्ड, मैं खुद भी बाइलिंगुअल ही इंटरव्यू देके आया था। यस सर। इंग्लिश पे मत प्रेशर डालिए कि नहीं मैं तो इंग्लिश में ही दूंगी इंटरव्यू। ये वहां पे आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप यूपी में रह रही हैं, आप इंग्लैंड में एसडीएम नहीं बनेंगी, ये बात समझिएगा। यस। यूपी में जैसे आप एक बार को महाराष्ट्र में बनती या फिर आप एक बार को केरला में बनती तो इंग्लिश समझ में आती कि आप प्रॉपर। यूपी में आधे लोग को इंग्लिश आएगी ही नहीं, वो लैंग्वेज बैरियर आपके लिए बड़ा बन जाएगा, ये बात समझिएगा। इस वजह से वो भी इस बात को प्रोत्साहित करता है कि आप हिंदी में ही दो इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जब हिंदी बोलनी है तो आपकी हिंदी बहुत स्पष्ट है, बहुत अच्छी हिंदी है ना। मैं वही कह रहा हूँ, एक एक पोटेंशियल कैंडिडेट, लास्ट ईयर इंटरव्यू के कितने मार्क्स मिले थे आपको, 69। है ना। मैं वही कह रहा हूँ वो 70 प्लस आपको इस बार भी मिलने हैं। बशर्ते जैसे जब हिंदी में बोलते बोलते आपकी इकोनॉमी, आपके ये वाले वर्ड्स बचने पड़ेंगे सर मुझे बस आपकी। वही दिक्कत हो रही है, मुझे ऐसा हाँ, फील हुआ। वो हाँ, वो मैं भी बहुत ध्यान से, मैं जब आपको ये लगता है मैं अगर ऐसे भी बैठ रहा हूँ ना, मैं जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए बैठ रहा था कि आप भी थोड़ा इरिटेट हो। वो इंटरव्यू बोर्ड भी ये काम करेगा, ये मत सोचिएगा कि इंटरव्यू बोर्ड ये काम वो करेगा। जैसे आप बहुत लंबे मोनोलॉग देंगी ना, तो इवन कुछ चेयरमैन इतने मजे लेते हैं, वो सो जाते हैं प्रॉपर प्रॉपर ऐसे करके हेड डाउन करके लेट जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट आई, जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू फर्स्ट अटेम्प्ट देता, टीसी आनंद सर का बोर्ड था, वो अच्छा। प्रॉपर लेट गए, मोबाइल लगे मोबाइल चलाने, उठ के ऐसे टहलने लगे, मोबाइल चलाने लगे। तो मुझे समझ में आ गया, अब मैं मेरा ध्यान भी भटक गया, हो सकता है आपका भी ध्यान भटक जाए। तो लंबे मोनोलॉग से बचना है, जी सर। आंख एकदम आई कांटेक्ट मैच करनी है, प्रॉपर आई कांटेक्ट मैच करते रहनी है। तो ये बात है, आपकी इकोनॉमी, आपकी योजनाएं से बचना है। सर हमारी इकोनॉमी बोलिए ना सर, यूपी की इकोनॉमी बोलिए, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स बोलिए, ठीक है, माननीय सीएम की स्कीम बोलिए। तो थोड़ा सा आपको ये इस पे थोड़ा वर्क करना है मेरे से। कब है इंटरव्यू आपका इस बार? 12th को सर, 12th 12th फर्स्ट। जो है, मतलब आपके 70 प्लस तो स्कोर अभी है, वही आप बढ़ाइए, मतलब इसको खींचिए और 5 नंबर बढ़ जाए, ठीक है, ताकि अगर टॉप में आए तो कुछ रैंक बहुत बढ़िया आ जाए, मतलब बढ़िया रैंक आ जाए, ठीक है। और मेंस कैसा रहा था आपका? सर मेंस अच्छा हुआ था। मेंस अच्छा हुआ, चलिए बजरंगबली की कृपा बनी रहे, हो जाइए इस बार, ठीक है। एसडीएम बन के यूपी में आइए। और बाकी आपके बहुत बढ़िया आंसर थे, धैर्य से आप मतलब बहुत कुछ अच्छी क्वालिटी, जैसे आप धैर्य से सुन रही थी बात को। अच्छा, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वाले में जबरदस्ती मत बोलिए सर मुझे कंपैशन बोलना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने आपसे, वो तीर निकल चुका है। यस सर। हाँ। 1 मिनट एटलीस्ट 10 सेकंड, अब आपने तीर वो मैंने आपसे इसीलिए ऐसे प्रश्न में देखिएगा, समझिएगा, बस यही लास्ट मेरा जो सजेशन है, ऐसे प्रश्न में 10 सेकंड टाइम दीजिए, प्रॉपर लीजिए 10 सेकंड टाइम। बोलिए सर मुझे 5 सेकंड 10 सेकंड का समय चाहिए, क्योंकि आप, मैंने ही बोला, मैंने क्वेश्चन की इंटेंसिटी समझिएगा, वो 2 वैल्यूज जो आप जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट मानती हैं, इसका आंसर कभी भी तपाक से नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं, अपने जीवन की 2 सबसे हैप्पी मोमेंट या 2 सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट बताओ, तो आपको 10 सेकंड का पॉज या 5 सेकंड का पॉज एक बार लेना चाहिए। इससे लगता है कि सामने वाला सोच के बोल रहा है।
ऐसा लगता है अच्छा वो सिविल सर्विस, मैंने देखिए तुरंत बोला ना ऑनेस्टी इंटीग्रिटी सिलेबस में आपके दिमाग से अपने आप ऑनेस्टी इंटीग्रिटी आ गया, तो मैंने भी सिलेबस पढ़ा हुआ है बोल मुझे। सकते हैं बोर्ड में कि सर मैं 2 सेकंड सोचने का ले सकती हूँ, इसलिए प्रॉपर सर, ये मुझे 10 सेकंड सर सोचने का समय चाहिए, बिल्कुल ऐसे प्रश्नों में, सिचुएशनल प्रश्नों में आप प्रॉपर समय मांग सकते हैं बिल्कुल कि सर मुझे 10 सेकंड समय दीजिए, मत होइएगा, वो खुद कहेंगे हाँ हाँ जी। बिल्कुल समय लो 10 सेकंड, ठीक है। तो ये जी। प्रॉपर आपको ध्यान रखना है। तो वो हड़बड़ी में सिचुएशनल क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन हड़बड़ी में मत ना है। कुछ चीजों पे इंस्टेंट रिएक्शन आता है, ये जैसे डॉरी वाले पे, और बहुत बढ़िया रिएक्शन था। प्रॉपर ये होना चाहिए भाई मैं शादी नहीं करनी है मुझे, है ना, शादी नहीं करनी है, बल्कि आप चाहे तो हंसी मजाक में मामले को ले जा सकती हैं, सर हम भाग के शादी कर लेंगे, हंसी मजाक में ले जाइए भाई। जब मुझे आईएएस अधिकारी पसंद है, मुझे अपना सीनियर पसंद है, उसे मैं पसंद हूँ, तो घर वालों क्या करेगा काजी, जब वो कहते हैं ना पति पत्नी राजी, बात खत्म। तो आप इस मामले को थोड़ा सा चीयर अप कर सकती हैं। देखिए वही कहते हैं ये फुल टॉस बॉल होती है, जी शादी वाली बात, दहेज वाली बात, ये सब फुल टॉस गेंद होती है। इस पे जितना लंबा छक्का मारिए, कैच आउट और बोल्ड हो गई ना फुल टॉस बॉल पे, तब वही आपके नंबर 70 से कम लाएगा। जी सर। इस पे छक्का मारेगी, जम के मारिए, ठीक है। तो जी बेस्ट ऑफ लक। और Thank- कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, आप फोड़ के आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ रमन सर, निशांत सर, आप लोग को कुछ बताना है तो बता दीजिए। शबीर, मैं ये कह रहा था कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा था। बाकी जो गौरव सर के सजेशन आप उसको फॉलो करिए, इंटरव्यू में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जैसे जनरली ना जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो सामने वालों को हम लोग ये सजेशन देते हैं लास्ट में कि चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल रखिएगा। आप में स्माइल लगातार बनी हुई थी, लेकिन कई जगह पर स्माइल गड़बड़ भी लगी। जैसे निशांत सर ने एक प्रश्न पूछा राम मंदिर के कुछ बेनिफिट्स, तो वहां पर आपकी स्माइल थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लगी। एक बार आप देखिएगा क्यों था, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। उस पर विचार करिए कि स्माइल क्या जरूरत है। देखिए स्माइल होना चाहिए, लेकिन हंसी, और ऐसा नहीं कि भाई हम क्वेश्चन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन को बस सर ऐसे पूछ दिया, ठीक है। तो वहां थोड़ा ध्यान इसको दीजिए। रमन सर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। जैसे अगर क्वेश्चन सीरियस है तो हम थोड़े सीरियस, जैसे दहेज वाला क्वेश्चन, और आपने वहां पे सही था, मुझे लगता है कि ठीक है राम मंदिर वाले में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाना चाहिए। जब क्वेश्चन सीरियस आएगा तो आप थोड़ा सीरियस चेहरे से लगेंगी, जब क्वेश्चन जॉली वाला आ रहा है तो आपको बिल्कुल जॉली नेचर दिखाना है, तो फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा है। रमन सर आप प्लीज। ठीक है, मुझे मतलब बाकी सब आपको बहुत अच्छा लगा, आपने हॉबी पर बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है, ठीक है। हॉबी का मतलब आपको सारे प्रश्न तैयार थे, बैडमिंटन से भी जितने प्रश्न बने सबको आपने अच्छे से बताया। आपने टूरिज्म को लेकर, मतलब ट्रैवल को लेकर जो आपने कॉन्सेप्ट बताया वो भी सही लगा मुझे, तो कोई समस्या नहीं है। एक दो चीज कर सकते हैं आप, जैसे प्रश्न ये भी बन सकता है ट्रैवल को लेकर के कि भाई आप रिसेंट में इतना लंबा, बहुत पहले आप गए थे वाराणसी, आपका लंबा समय हो चुका है, तो वो आपकी हॉबी कैसे है, इस पर थोड़ा वर्क करिएगा। आप कुछ ऐसा बता सकते नहीं मैं अभी रिसेंट भी अपने ही शहर से बाहर गई थी, 50 किलोमीटर दूर अकेले गई थी, घूम करके आई थी, ऐसा भी कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। शहर में भी घूमना, शहर में भी घूमना, रोज शाम को निकल जाते हैं, थोड़ी देर शहर में घूम फिर के आते हैं, मतलब देखते क्या ऐसा कुछ डेवलपमेंट है। सोचिएगा एक बार, ठीक है, बता सकते हैं हम लोग, जी सर। ये वर्क करिएगा। बाकी बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू, बहुत सारी करंट शुभकामनाएं। वरेंट आपका तैयार है, बहुत बढ़िया। जी सर। एक दो केस और देख लीजिए, जैसे कि अभी ये पीरियड पेड लीव आपने देखा है, डंकी उड़ान देख लीजिएगा। जी सांसदों का जो निलंबन हुआ है, जिसमें मिमिक्री और ये अभिव्यक्ति की आजादी, मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, तैयार कर लिए सर, कुछ हाँ, ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। 25-30 टॉपिक्स बना के उन पे नोट्स तैयार किए हैं। फिर तो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर बहुत सारी शुभकामनाएं निशान जी। थैंक यू सर। सभी मेरी तरफ से भी सब कुछ बेहतर था और गौरव सर ने प्रॉपर चर्चा किया ही है, ठीक है। उम्मीद करेंगे इंटरव्यू बहुत बेहतर जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सभी आपके कुछ बेस्ट ऑफ प्रश्न हो लक। तो पूछ लीजिएगा, अगर कुछ प्रश्न आपके हो, कोई डाउट हो तो। सर मुझे बस यही एक बायलिंगुअल वाला था थोड़ा सा कि इससे कोई दिक्कत, क्योंकि पिछली बार तो उस बोर्ड में नहीं आई, बट मुझे अभी 1-2 जगह बोला गया कि हिंदी में दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ वर्ड्स में का हिंदी अगर सोचने में लग जाऊंगी तो मैं कहाँ वहां बोला गया, टाइप, मुझे एक बात बताइए क्लियर कट, मैं आपसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कहाँ बोला गया आपसे ये बात। सर वो एक संस्कृति करके है, वहां पे हाँ बोला। तो वो समझिए ना, वो लोग बोलते हैं जिनको कभी खुद पीसीएस के इंटरव्यू की, मतलब पीसीएस के इंटरव्यू का जिनको कभी अनुभव ही नहीं है, कुछ देखा ही नहीं है, वो मनगढ़ंत बातें कुछ बना लेते हैं, वही चीज बोल देते हैं। मैं आपसे एक बात क्लियर कट बता रहा हूँ, पीसीएस में भी, इवन पीसीएस में भी ना, अगर मैं हचकिचा रहा था तो वो खुद ही बोल रहे थे कि आप ऐसे बोल सकते हो। यूपीएससी वाले में तो मेरे से पहले ही बात कर दी थी, जो मैम थी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला ना कि आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल हो जाइए, उन्होंने ये बात क्लियर कट बोल दी थी कि आप एकदम रिलैक्स रहो। मतलब आप, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप बाइलिंगुअल हो, उन्होंने ये बोला आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आराम से बातचीत कर सकते हो, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ना कि आपको परेशान करना चाहते हैं। जी सर। इंटरव्यू का कभी भी मैटर यही होता है,
आपकी लैंग्वेज नहीं चेक करना चाहते हैं। शुद्ध हिंदी आप किसी यूपी वाले को पकड़ के बोल दीजिए, उसको कहेगा ये कहाँ से देवी जी साक्षात प्रकट हो गई। ऐसा तो केवल रामायण में सीता माता के मुंह से सुना था, दूसरा ये दिख गई है। ठीक है, सर दूसरा मेरा एक ये था कि मेरा 2020 में कोविड के बाद से मैंने जॉब छोड़ी थी। उसके बाद से फिर मैं प्रिपरेशन में हूँ। तो दूसरा मुझे इस चीज़ के लिए भी कहा गया था कि यूपी में जो लोग आते हैं वो कहीं न कहीं कुछ नहीं तो टीचर तो होंगे ही। तो आपका इतना बड़ा गैप वो आपके लिए एक ये डिफ़िकल्टी। कुछ नहीं होता है। आप प्रॉपर बताइए कि सर 2020 तक तो मैं एकदम तैयारी में नहीं थी। 1-2 साल तो सर प्रिपरेशन में लग जाता है। मैंने लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था और मैं बहुत मतलब आप सीधे इसको बोलिए सर मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन और मुझे ये भी लगा कि मुझे ये वर्थ इट है। क्योंकि मैंने प्राइवेट सेक्टर की एक बार जॉब की है एज़ अ वुमेन, एज़ अ सोसाइटी के लिए वो क्या बोलते हैं उसको एक रोल मॉडल के तौर पे अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ इस बैकग्राउंड से, तो बहुत लोगों पे इम्पैक्ट जाएगा। तो इस सर वजह से और सर क्या बोल हाँ, सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को साथ करने में मैं जस्टिस नहीं दे पा रही थी दोनों के साथ। इसलिए मुझे बिल्कुल। लगा कि अगर मैं एक पे ध्यान दूँगी तो मैं उसको इक्वली जस्टिस हो पाएगा उसमें। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपके साथ ये है कि आप पहले कहीं जॉब कर रही थी। ये जी, रहता कि आप 2000 जैसे कई स्टूडेंट तो ऐसे आते हैं पीसीएस में 14 से तैयारी कर रहे हैं, पहला इंटरव्यू है, 9 साल में। बीच में हमने खुद पूछा कि भाई क्या किया? तो कुछ नहीं किया। आप तो एटलीस्ट 2020 तक जॉब कर रही थी ना? उसको जी सर। 21 बता दीजिए, 21 तक कर रही थी, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोविड में वर्क फ्रॉम होम था। सर उसी में कोविड में जॉब छूट गई। सर मेरा ना कोविड पे एक इनिशिएटिव था, वो मैं हुँ। इंटरव्यू में कैसे लेके आऊँ मुझे बस उस चीज़ के लिए गाइड कर क्या था दीजिए। इनिशिएटिव? मुझे बताइए क्या था इनिशिएटिव? सर मेरा जो टाउन है सिहोरा, वहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। मुझे खुद फर्स्ट वेव में कोविड हुआ था और मेरे पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था मुझे जबलपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उस टाइम हॉस्पिटल्स की हालत खराब थी। तो जब मेरा ये हुआ तो उसके बाद मैंने क्योंकि ये एथिक्स में हम सब पढ़ते रहते हैं तो पामे आर्मस्ट्रांग सर का वो याद था कम्युनिटी फंडिंग वाला। तो मैंने अपने स्कूल एलुमनाई, कॉलेज एलुमनाई इनसे स्टार्ट करके कम्युनिटी फंडिंग रेज़ करने का एक मोटिव लिया। फिर मैंने उसमें अपने एक फ्रेंड को भी इन्वॉल्व किया जिसने उसमें मतलब चैनल से ये सब किया कि हमने सबसे रीच किया और उससे हमने फंडिंग रेज़ करके हमारे हॉस्पिटल पे एक बेड प्रोवाइड करवाया हॉस्पिटल का और वहाँ पे कुछ जो इमरजेंसी जैसे ऑक्सीजन चाहिए था, मास्क चाहिए था, वो सब प्रोवाइड किया। उससे ये हुआ कि जो वहाँ के बाकी लोग हैं, उनने भी कोई जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, कोई एसी दे रहा है, तो मतलब जिस हॉस्पिटल में कुछ नहीं था, वहाँ पे अब हॉस्पिटल का एम्बुलेंस भी हो गया सब। उसके लिए मुझे वहाँ के डीएम से एप्रिशिएशन लेटर भी मिला था। तो क्या मैं बात है! बहुत इसको बढ़िया। कैसे लेके आऊँ? मुझे ये देखिए, इसमें इसमें 2-3 बातें हैं, अलग-अलग तरह से लाने का तरीका है। जी सर। डिपेंड करेगा कि आप कैसे ले आती हैं। पहली बात अगर मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन आता है कि ये ब्रेक क्यों है? जी आप सर। इस बात को क्लियर कट बोलिएगा कि सर कोविड में मेरी नौकरी छूट गई थी। जी सर। लेकिन उस समय सर मैंने अवसर का प्रयोग किया आपदा में और ऐसे-ऐसे काम किए। ये जी सर। बताइएगा प्रॉपर वहीं पे। और जी। सर तब मुझे लगा कि एक एज़ अ एसडीएम देखिए समझिएगा बहुत जगह पे, बहुत प्रॉपर जगहों पे आप इनको ला सकती हैं। जी जैसे सर। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपसे ये पूछा जाए, मैंने नोट ही किया था, मैंने ये नोट किया था, मैंने आपको भेज दिया है, मतलब अभी स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर दूँगा। जी सर। व्हाई सिविल सर्विसेज? जी। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा चांस है कि बनेगा, जी कि सर। क्यों सिविल सर्विसेज? आप इस बात को प्रॉपर बताएँ सर कोविड तक मैं प्राइवेट नौकरी में थी, कोविड में टू द पॉइंट रहिएगा, बहुत लंबा मोनोलॉग ये फिर से ये नहीं कि सर मैंने ये किया हॉस्पिटल में क्राउड फंड ये नहीं, बहुत शॉर्ट तरीके से किस तरीके से बोलना है सुनिए एक बार। जी तो सर। सर कोविड में मेरी नौकरी छूट गई, उस जी। दौरान मुझे भी कोविड हो गया। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने केस स्टडी पढ़ी थी, हमने न्यूज़पेपर में आर्मस्ट्रांग पामे सर के बारे में सुनी थी, क्राउड फंडिंग से काम काम हो सकता है। तो हमने वही प्रयास किया, हॉस्पिटल में बहुत ही सक्सेसफुल रहा सर। उनका इंटरेस्ट होगा तो और डिटेल में पूछेंगे कि तुमने क्या किया, क्या किया? जी सर। हॉस्पिटल सर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तब सर मुझे समझ में आया कि पीपल सर्विस और गवर्नमेंट के साथ पीपल सर्विस बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है और सर इस वजह से मैं प्रिपेयर करी। पहला एक तरीका ये बढ़ गया। जी दूसरा हॉबी में आप इसको ले आ सकती हैं। हॉबी में चीज़ों को ले आ सकती हैं। सर नए इनिशिएटिव लेना, कुछ जगह पे आगे बढ़ के काम करना, खास तौर पे वैल्यूज़ में। जो जी। वैल्यूज़ मैंने पूछा ना, तो यहाँ पे तो यही फुल टॉस बॉल थी। यहाँ पे आपको मारना चाहिए था सीधे छक्का बाउंड्री पार गिरे बॉल। आपकी वैल्यू क्या है? तो कंपैशन एक वैल्यू हो गई। मान लीजिए आप कंपैशन बताती, तो हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछे कि कोई एग्जांपल दो कंपैशन का, तो ये दे सकती हैं। दूसरा एक वैल्यू ये भी होता है सर लीडरशिप दिखाना और आगे बढ़ के काम करना, जो कि सर मैंने कोविड में किया है। सामने से बताइए, सर कोविड में मैंने किया है। अब वो पूछे भाई क्या किया? और पूछेंगे ही पूछेंगे। तो बताइए जी। सर ऐसा-ऐसा सिचुएशन था, नौकरी और
अपनी नौकरी छूट जाना पक्की बात है, बताइए। जी सर। नौकरी छूट गई है कोविड में, इस बात को पक्का बताइए। तब और सामने वाला थोड़ा इमोशनल होता है कि भैया इसकी नौकरी छूटी है और अब देखो कितना कमाल कर रही है। जी सर। प्रॉपर इस बात को अब समझ में आ गया। तो 2-3 तरीके से जी सर। हॉबीज में लाने की कोशिश कीजिए। इंट्रोडक्शन हालांकि पूछेंगे नहीं, मेरे हिसाब से 90 लास्ट ईयर पूछा था आपसे इंट्रोडक्शन? नहीं सर, हाँ, वो इंट्रोडक्शन नहीं पूछते हैं, वो लास्ट जनरली ईयर आपसे ऑप्शनल से स्टार्ट किया था, क्या हाँ, ऑप्शनल है? हाँ, बिल्कुल वही एग्जैक्टली उनके पास यही। अब तो ऑप्शनल का भी फंडा खत्म है, ठीक है। जी। तो एक काम ये भी पूछ सकते हैं कि कोई अपने बारे में ऐसी चीज बताओ जिससे हम इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि अपने बारे में कोई ऐसी ऐसी चीज बताओ जिससे हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो यही बताओ, सर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और मेरा ये लोकेशन से मैं बिलोंग करती हूँ। बहुत शॉर्ट में बेसिकली वो इंट्रोडक्शन ही होता है, जी सर। इंट्रोडक्शन ही बताना था, लेकिन कि क्वालिटी वाली बात जरूर बता देनी चाहिए। जब मैं आपसे पूछूं अपने बारे में बताओ, अपने बारे में एक क्वालिटी लेवल पे, एक तो क्वांटिटी लेवल पे तो जनरली बताते ही हम, क्वालिटी लेवल पे भी एक पॉइंट बता देना इज अ गुड थिंग, जी जो सर। जनरली हम लोग हॉबी से बताते हैं। हम्म। तो आप हॉबी भी आपकी बहुत अच्छी खासी है, बैडमिंटन खेलना एक्टिविटी वाली हॉबी है, उसके बाद में आपको तैयार भी था, चेक करिएगा शायद जापान ही था उसका सही आंसर। मैं तो बस आपको मुझे मतलब याद आ रहा था सर। हाँ, मैं जबरदस्ती परेशान कर रहा था, वो तो क्लियर कट बात है। मैं बस चेक कर रहा था कि आप कॉन्फिडेंट है। आप आखिरी में बोल ही दिया आपने, नहीं सर मैं भूल रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है ये। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन है तो बोल देना चाहिए। जी तो सर। इस तरह से आप इस बात को बढ़ाएंगे, ठीक है, मामला क्लियर हुआ है ना? जी सर। बाकी ये वीडियो आपको मिल जाएगा दोबारा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। जी बहुत बेस्ट ऑफ लक और इस बात को लाइए इंटरव्यू में, ठीक है, मजा जी आएगा, नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी फिर, जय सर। हिंद, बेस्ट ऑफ लक।